Okay. So digital marketing covers three main pillars of marketing, digital marketing main pillars. One is a social media, second is a Google Ads, and third related to business website, which is SEO and why to create a website, how to create a website for the conversion level. Conversion मतलब अगर कोई business website पे land करता है तो how my business website can convert that particular people, particular audience for my business. कोई land करता है तो purchase कैसे कर सकता है, ये SEO और बाकी सब में सीखते हैं हम. Apart from that, we will learn little bit about fundamentals of growth. Fundamentals of growth is what? Basically, digital marketer has a one job in a company to bring a growth. Not only digital marketer, overall marketer and sales team works for this particular growth part. How a marketer or maybe how salesperson can bring a growth. So we'll understand the angle of marketing, how marketer as you going to be create a growth for a company, how you can bring a growth, and growth of side of revenue, growth of side of followers gaining, everything can be considered as a part of the growth. So how you can plan organization's growth, what you need to understand about organization, about marketing. These are our main topics. So today I'm going to give you one Excel. Let me show you the Excel so you will get idea about the Excel. I hope my screen is visible to you guys. Is the screen visible guys? सबको? Yes, yes. Yes. So this particular screen is, or maybe the particular Excel is all about the topics what we are going to have. Yesterday we have seen the overview, and this is the list of the topic end of the day. These are the every session's topic, what we're going to understand, what we're going to learn about the particular session. So you will see the topic list, for example, introduction of the marketing. So this particular two sessions, we're talking about introduction of the marketing, what you will understand, what is the business audience, how marketing works. These are the basic topics that you will learn from this particular one. Then again, branding and content related work, that what are the sessions, what are the main learnings from you. So this is all for you guys to keep the track how it goes ahead. Then for example, if you miss anything, you can note it down, that particular session you have missed. Recordings with you, if you got it from recordings, okay. If you not, you need to come back and ask this particular concept, you did not understand a particular concept, you are not able to do it. So this particular Excel is for you guys. So in the end of the class, you will have all of the recordings and you will have all of this picture in front of you. This is what I have learned. Okay. So this particular Excel I'm going to share after this particular session. आज के क्लास के बाद मैं share कर दूंगा. Okay, and plus I'm going to share previous PPT as well, since I'm waiting you all are joining in the group. So previous PPT and this particular Excel will be on the group. So you need to go through. If you have any questions around, please ask. कोई question है आपको इसके around तो please पूछ लेना. Got it? Clear है? Yes, no? सर एआई के बारे में कुछ है क्या? What AI? हाँ. What is a AI? You know? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कुछ No, आप डिजिटल that मार्केटिंग is में a भी यूज long कर form रहे of AI. What AI you know? AI के बारे में हो. पता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ना, that is a long form. उसके बारे में क्या पता नहीं, वो प्रोसेस जरा ऑटोमेटिक कर देता है, आप काम जो कम कर देता है. है? ऐसा नहीं है, काम कम नहीं कर देता, वो हमारे काम को अच्छा बना देता है. ओके. So of course there will be the AI. We cannot deny AI in a marketing nowadays. Okay. So there is a no topic of AI, but how AI going to be used in every topic, we'll go and see. Okay. Fine. So now from the today onwards, we are going to understand from the basics of marketing. Okay. जिनको पता है, very good. Those who are understanding and doing the marketing the first time, marketing के sessions है, marketing related knowledge पहली बार देख रहे हैं या पहली बार ले रहे हैं, उनके लिए काफी important session है ये. For example, this particular session is all about the fundamentals of the marketing. Fundamentals of marketing, where we are going to understand what is the basically of the marketing and what is the basic target audience for a business. हमारा बिजनेस कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और हमारे बिजनेस की टारगेट ऑडियंस कैसे लिखी जाती है, ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे. बिकॉज एज अ फर्स्ट टास्क ऑफ द मार्केटर, जब भी आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हो किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, आपका सबसे पहला टास्क ये होता है कि आप उस बिजनेस को समझ लो और उस बिजनेस का टारगेट ऑडियंस जान लो ना. व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द टारगेट ऑडियंस, ये हम समझते हैं. ओके. नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग. आई होप माय स्क्रीन इज अगेन विजिबल फॉर यू. दिख रहा है सबको? यस, नो?
Visible for all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Let's start. So now in this particular content, we're going to understand types of the marketing, audience, that's one of the important part. Then funnel, अगर time allows us, funnel भी discuss करेंगे. Then there are a lot of content I'm going to give you as a language of marketing, because language of marketing के अंदर काफी सारे ऐसे शब्द होते हैं जो पहली बार आप सुनोगे. सो जब सुनते हो तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे काफी सारे लैंग्वेज ऐड करके रखिए दैट यू नीड टू रीड डाउन. ओके, और काफी सारे यूजफुल लिंक है जो आपको फर्स्ट पढ़ने चाहिए बिफोर टू स्टार्ट ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग सीखने से पहले, मार्केटिंग करने से पहले ये थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए. ऐसा एक डॉक्यूमेंट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ या टाइप ऑफ मार्केटिंग फर्स्ट. ओके, दीज आर द लिस्ट ऑफ मार्केटिंग. ओके, पढ़ लो एंड टेल मी ऐसा कौन सा मार्केटिंग टाइप है जो आपको पता नहीं है, दैट यू आर रीडिंग एट द फर्स्ट टाइम, और मे भी पता है तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज आउटबाउंड मार्केटिंग, पर्सनलाइज मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, पीआर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड वर्ड टू माउथ मार्केटिंग. तो अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा है जिसको आप, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केटिंग आपको पता है, डिजिटल मार्केटिंग छोड़ के. वर्ड ऑफ माउथ पता है, देन पब्लिक रिलेशन पता है, ओके, व्हाट इज अ पब्लिक रिलेशन? एंड पर्सनलाइज मार्केटिंग. व्हाट इज पीआर मार्केटिंग? सर लाइक जो कंपनी की वेबसाइट होती है उस पे कुछ न्यूज या फिर कुछ चेंजेस किए कंपनी ने तो वो उस पे डाले जाते हैं. लाइक जो उनके कंज्यूमर है तो उनको पता चले कि क्या मतलब अभी चेंजेस हुए क्या नहीं. लाइक जब फाइनेंस का कुछ एनुअल रिपोर्ट आता है वो भी पब्लिक रिलेशन में वो पब्लिश करते हैं. सो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. ओके, एनी अदर ओपिनियन? एक्चुअल में पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग में ऐसा होता है कि जैसे बैंक में आप जा रहे हो तो उसमें आपको एक रिलेशन मैनेजर मैनेजर रहता है, तो वो आपको पूरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता है कि ओके, ये वो चीज होती है, आई थिंक वो. ओके, फाइन. एनी अदर ओपिनियन? अच्छे ओपिनियन है दो, भी और कौन से ओपिनियन है? ये किसी भी टाइप ऑफ मार्केटिंग के लिए, आउटबाउंड के लिए या पीआर के लिए स्पेसिफिक? टेली मार्केटिंग में भी वही फोन के थ्रू आपको सब चीजें बताई जाती है. राइट. ओके, चलो थोड़ा और अंडरस्टैंड. वर्ड ऑफ माउथ यानी हाँ, वर्ड. फिजिकल लेवल पे जो फ्रेंड्स है फैमिली हो वो बताते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है. ओके, फाइन. चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. पर्सनल मार्केटिंग आई थिंक कुछ पर्टिकुलर मतलब लोगों के लिए होता है, जैसे नीश प्रोडक्ट बोलते हैं हम कि कुछ ग्रुप है या फिर टारगेट ऑडियंस है पर्टिकुलर, जैसे कि स्कूल के बच्चों के लिए कुछ अलग. इसमें पर्सनल मार्केटिंग आता है आई गेस. ओके, ठीक है, समझते हैं एक 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 को. फर्स्ट, आउटबाउंड मार्केटिंग. आउटबाउंड मार्केटिंग इज अ मेथड ऑफ मास मार्केटिंग. मास मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आई गॉट टू अंडरस्टैंड, मेरा एक सिटी है, मेरे सिटी के अंदर ऐसे 5-6 जगह है जहाँ पे काफी सारा बड़ा भीड़ होता है, हाईवेज है या मॉल्स है. So I got to know that there are lot of topics or lot of products are there that can be do a mass market. Example, मूवी है, मूवी आ रही है, मूवी की मार्केटिंग करना है तो मैं वहां पे मेरे पोस्टर्स लगा सकता हूँ, वहां पे मेरे बैनर्स लग सकते हैं, या रियल एस्टेट रिलेटेड बैनर्स है वो लग सकते हैं. उससे क्या होता है, द मैसेज विल बी वाइड, बहुत बड़ा मैसेज है. उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस मेरे पास नहीं है. इट कैन बी गोज फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड. तो मैं सबके लिए एक बड़ा मैसेज रखना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग. जहाँ पे मार्केटर टारगेट करता है मास ऑडियंस को, बड़े ऑडियंस को टारगेट करता है, इसलिए ऐसी जगह चूज चूज करता है. फिजिकल ऐसे ही प्लेसेस होते हैं जहाँ से वो पूरे उस टाइप ऑफ ऑडियंस को ग्रैब कर सकता है. मॉल में या हाईवेज में आपको ये सारे बैनर्स देखने को मिलते हैं. होर्डिंग्स पर्सनलाइज मार्केट. यस. होर्डिंग्स. हाँ, होर्डिंग, राइट. पर्सनलाइज मार्केटिंग इज लिटिल डिफरेंट. पर्सनलाइज मार्केटिंग इज एग्जाम्पल, अभी आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मुझे बताओ. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एनी बर्थडे कमिंग अप और एनिवर्सरी आ रहा है, और उस दिन आपको कुछ ऑफर आया किसी होटल का या किसी ब्रांड का, ऑफर का ईमेल, यू हैव Yes, 5%. sir. 10% off in your birthday month. Exactly. So this is called as a personalized marketing, where brand is try to touch base with your
particular special day, try to push the particular product according to that particular day. That is called as the level of personalized marketing, where brand is targeting you because there's a special something about day, there's special something about offer. That is called personalized marketing, where brand is try to understand the data. Example, हम मॉल में गए, मॉल में जब हमारा बिलिंग होता है तो हमने डिटेल्स ले लिए, अकॉर्डिंग टू दैट वो हमको रिटारगेट कर सकते हैं। या आप ऐप पे लॉग इन करते हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, आप पे अपना बर्थडे वगैरह डाल दिया, मिंत्रा के आपको बर्थडे के दिन पहले ऑफर आएंगे कि आपके कार्ड पे 10% ऑफ है, बाय नाउ। So that is called as a personalized marketing, where brands try to understand the data and that data used for the niche level marketing. छोटा सा छोटा ग्रुप बना के आपको टारगेट किया जाता है। देन टेलीमार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग इज अगेन काइंड ऑफ अ मास मार्केटिंग, बट वहाँ में थोड़ा सा फिल्टर होता है, वेयर I'll call the person and I'll explain the product. If he or she is more interested about it, I'll explain more about the product so that can be converted. ऐसे काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जो होर्डिंग्स में या मेल्स में या ईमेल्स में या एडवर्टाइजमेंट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आई नीड टू कॉल देम एंड आई नीड टू एक्सप्लेन द होल प्रोसेस और मे बी एक्सप्लेन द होल प्रोडक्ट। तो उसके लिए टेलीमार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। सो टेलीमार्केटिंग इज देयर, डिजिटल मार्केटिंग आए जाए, बट टेलीमार्केटिंग हमेशा वहां पर रहा है और रहता जाएगा, बिकॉज पीपल लाइक टू लिसन फ्रॉम द पीपल एंड दे लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पीपल। तो इसलिए टेलीमार्केटिंग हमेशा चलता रहता है, उसका अपना एक ऑडियंस है। पीआर, पीआर मार्केटिंग इज फॉर व्हाट, टू मेक द रिलेशन फ्रॉम ब्रांड और फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्स टू ऑडियंस। अभी ये पीआर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज या पीआर मार्केटिंग रिलेटेड जो आपको एड देखने को मिलते हैं या कैंपेन देखने को मिलते हैं, वो थोड़े से वाइड स्केल लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, सम स्टार इज देयर, उसका मूवी आ रहा है, तो वो पीआर रिलेशन या पीआर रिलेटेड मार्केटिंग के कैंपेन्स रन करते हैं। एग्जांपल, उस स्टार को लेके कोई फॉर एग्जांपल अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा, जैसे कोई वृक्षारोपण किया जाएगा, या उस स्टार को लेके कहीं पे देश के लिए कुछ काम किया ऐसा दिखाया जाएगा। वाई? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ रिलेशन विद द पीपल। उस ब्रांड का लोगों के साथ रिलेशन करना चाहते हैं। उससे क्या इम्पैक्ट होता है, पीपल विल रिलेट विद पर्टिकुलर स्टार, एंड उस स्टार का आगे जाके 3-4 महीने मूवी आता है, तो दैट मूवी गेट गुड सेल्स, मूवी का सेल्स अच्छा होता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ पीआर मार्केटिंग। ये ब्रांड्स भी करते हैं, ब्रांड्स भी कुछ फॉर एग्जांपल कुछ गुड कॉज में अगर काम करते हैं तो वो उसका कैंपेन क्रिएट करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन द पीपल। तो इसलिए पीआर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। नाउ वर्ड टू माउथ, वर्ड टू माउथ इज अ काइंड ऑफ, जैसे हेलो सर, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल गर्ल्स के लिए कुछ कैंपेन करते हैं तो वो पब्लिक रिलेशन में आएगा, राइट? which one, who does that? पीएनजी। हाँ, right, exact, yes, this is a PR strategy। पीएनजी गर्ल्स हाइजीन के लिए कुछ कैंपेन क्रिएट करता है, गर्ल्स हाइजीन के लिए अच्छा काम करता है, उसको वो ठीक से मैसेज क्रिएट करके जब वो एड क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक रिलेशन कैंपेन, राइट। एंड लास्ट इज वर्ड टू माउथ, वर्ड टू माउथ वेयर आर कस्टमर बिकम्स आर मार्केटर। जो भी मेरा कस्टमर है, जो भी मेरा कंज्यूमर है, वो मेरा मार्केटर बन जाता है। क्यों? बिकॉज मेरा सर्विस बहुत क्वालिटी है, सर्विस अच्छा लगा उन लोगों को, या मेरा सर्विस के अंदर मैंने क्लियर मैसेज दिया कि इफ यू विल टेल दिस टू अदर पीपल दैट यू विल गेट सम बेनिफिट, रेफरेंस बेनिफिट होता है, तो वर्ड ऑफ माउथ अच्छा वर्क करता है। या जेन्युइन हमारा सर्विस अच्छा लगा तो लोग दूसरों को सजेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ। नाउ वेयर दिस डिजिटल मार्केटिंग इन दिस पर्टिकुलर होल टेंजेंट ऑफ मार्केटिंग टाइप, डिजिटल मार्केटिंग हर एक टाइप के मार्केटिंग को हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल, आउटबाउंड मार्केटिंग। आप एक मॉल में गए हो और मॉल में अपने बड़ा बहुत बड़ा पोस्टर देख लिया, एंड आपको थोड़ी देर के बाद या आपको 2-3 दिन के बाद उसी पर्टिकुलर मूवी का ट्रेलर यूट्यूब में देखने को मिला। सो यू विल बी लिटिल इंटरेस्टिंग टू सी दैट पर्टिकुलर ट्रेलर। आप देखोगे या आपको पता चलेगा कि हाँ, ट्रेलर इज कमिंग अप, डेट इज दिस पर्टिकुलर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी। सो इससे क्या होता है, इम्पैक्ट बढ़ गया। पर्सनल मार्केटिंग सेम, अगर आपको मिंत्रा का कोई कूपन आया बर्थडे के दिन, और मिंत्रा का अगर इंस्टाग्राम पे कोई ऐड आया, अगेन आपका ऐड पे क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाता है। टेली मार्केटिंग, अगर आपको कॉल आया और आपके कॉल कॉल के अंदर आपने सुना, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड किया, और उसी प्रोडक्ट का आपको अगर ऐड आ गया या यूट्यूब पे उसका रिव्यू देखने को मिला, अगेन योर इंटरेस्ट इज लिटिल मोर, आप देखोगे, क्लिक करोगे, चांसेस हायर बन जाते हैं। पब्लिक रिलेशन सेम वेज, कि अगर आपकी पर्टिकुलर ब्रांड आपने सुना हुआ है कि वो लोगों के लिए अच्छा काम करता है, लोगों के लिए अच्छा उसके कॉजेज है, अगेन उसकी अगर ऐड आती है तो ऑटोमेटिकली आपका क्लिक होने का चांसेस बढ़ जाता है। वर्ड टू माउथ, somebody told you कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है, इस रेस्टोरेंट की ऐड आ गई, यू डेफिनेटली गोना क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर। सो डिजिटल मार्केटिंग
की वजह से ये बाकी के मार्केटिंग भी अच्छे चल सकते हैं और बाकी की मार्केटिंग की वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग काफी अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है। सो दीज आर द ऑल टेंजेंट वेयर ब्रांड डू अ मार्केटिंग। और हमारा काम होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग से बाकी के मार्केटिंग के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए ओवरऑल ब्रांड की या हमारे बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए। व्हाट इज बिजनेस ग्रोथ इज बेसिकली कि हाउ मेनी पीपल आर कमिंग ऑन माई वेबसाइट एंड हाउ मेनी पीपल आर कन्वर्टिंग फॉर द वेबसाइट। डिजिटल मार्केटर का मेन टास्क क्या होता है कि लोग मेरे वेबसाइट पे कितना आ रहे हैं और मेरे वेबसाइट से लोग कितना कन्वर्ट हो रहे हैं। वेबसाइट की जगह पे सोशल मीडिया रहेगा। सोशल मीडिया पर्सन का काम क्या होता है कि लोग मेरे सोशल मीडिया पे कितना आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितना कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट मतलब क्या, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग मेरा कंटेंट ओपन करके देख रहे हैं। गूगल का बंदा रहेगा तो गूगल पे कितने क्लिक कर रहे हैं, एड्स पे मेरे कितने क्लिक कर रहे हैं। एसईओ का बंदा रहेगा तो मेरे वेबसाइट पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। सो एवरीवेयर द मैट्रिक्स इज अ क्लिक, कि कितने लोग ज्यादा मुझे क्लिक कर रहे हैं और मेरा कंटेंट को ओपन करके देख रहे हैं, कितने लोग मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग मेरे कंटेंट को क्लिक करके परचेस कर रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटर का सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है। दैट इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज वर्किंग फॉर। नेक्स्ट, इसी टेंशन को अंडरस्टैंड करते हैं मार्केटिंग। व्हाई बेसिकली डिजिटल मार्केटर डू एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग डू एफर्ट्स। तीन चीजों के लिए डिजिटल मार्केटिंग काम करता है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं फिर से अंडरस्टैंड करते हैं टारगेट ऑडियंस। नाउ यू नीड टू कंफर्म मी, हर एक ब्रांड का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बिजनेस का अपना एक सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस होता है। डू यू एग्री? यस सर। राइट। एग्जाम्पल, मेल परफ्यूम ब्रांड है तो उसका प्राइम ऑडियंस मेल है। उसका प्राइम ऑडियंस मेल के अंदर भी कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का ऑडियंस उसका प्राइम ऑडियंस रहेगा। राइट। दैट पर्टिकुलर ऑडियंस इज कॉल्ड एज टारगेट ऑडियंस। तो मार्केटर जो भी एड क्रिएट करता है, जो भी कंटेंट क्रिएट करता है, जो भी क्रिएटिव्स क्रिएट करेगा, एवरीथिंग टू अट्रैक्ट दीज सेट ऑफ ऑडियंस। सेम परफ्यूम ब्रांड, मेल परफ्यूम ब्रांड है। आई गॉट टू नो कि मेरा प्रोडक्ट 18 से 25 मेन ज्यादा परचेस करते हैं, एज ऑफ 18 टू 25। whatever my content, whatever my language of the content, whatever the creative of my content is for them, उनके लिए मैंने बनाया है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस फर्स्ट। तो हर एक ब्रांड का अपना टारगेट ऑडियंस होता है। उस टारगेट ऑडियंस के लिए मार्केटर तीन चीजों के लिए काम करता है। फर्स्ट होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब क्या होता है, मार्केटर का सबसे पहला काम होता है कि जो लोग मेरी ब्रांड के बारे में जानते नहीं है उसको मेरी ब्रांड के बारे में मुझे पता करवाना है। पीपल in my target audience should know about my brand. How they will get to know about my brand? Maybe मेरी एड की वीडियो देखेंगे, मे बी मेरे ऐड का पोस्टर देखेंगे, मे बी मेरी ब्रांड की रील देखेंगे, मे बी मेरे ब्रांड का यूट्यूब वीडियो देखेंगे। However, what is the simplest and possibly best way? I'll pick up that particular way and I'll create the content that content can easily understandable. मैं ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करूंगा जो लोगों को मेरी ब्रांड के बारे में पता चल सकता है, लोगों को मेरी ब्रांड की मैसेज पहुंचा सकता है कि व्हाट इज दिस ब्रांड, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। वंस पीपल गॉट टू नो अबाउट माई ब्रांड, लोगों को मेरी ब्रांड के बारे में पता चल गया, मेरा नेक्स्ट काम रहता है मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ आई कैन ब्रिंग पीपल ऑन माई वेबसाइट। क्यों लोग मेरे वेबसाइट पे आना चाहते हैं या क्यों मैं लोगों को वेबसाइट पे लेकर आऊंगा? बिकॉज वेबसाइट्स पे मेरे प्रोडक्ट लिस्टेड है, where people can go and read about my product, service, business, and they can really take a decision on the particular product. सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं वेबसाइट पे लेके आऊँगा जो मेरे टारगेट ऑडियंस के अंदर रहेंगे। एंड थर्ड माय वर्क इज हाउ आई कैन कन्वर्ट देम बैक फॉर माय बिजनेस। लोग मेरे वेबसाइट पे आए तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि वो लोग परचेस करे, मेरा डेमो बुक करे, मेरे फॉर्म को सबमिट करे। तो ये तीन चीज़ों के लिए मार्केटर काम करता है। इसको ही बोलते हैं मार्केटिंग फनल। फर्स्ट इज अवेयरनेस, कि कैसे मैं मेरे ब्रांड को लोगों तक पहुंचाऊं, लोग मेरी ब्रांड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड, अंडरस्टैंड किए हुए ऑडियंस को मैं कैसे वेबसाइट पे लेके आ सकता हूँ, वेबसाइट पे आए हुए ऑडियंस को मैं कैसे मेरे बिजनेस के लिए कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तीन मार्केटर के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। ये टास्क कंप्लीट करवाने के लिए, ये टास्क सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता होना बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे कि एज अ ब्रांड, एज अ मार्केटर ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड, हाउ आई कैन गो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द टारगेट ऑडियंस। मैं मेरा टारगेट ऑडियंस कैसे जान सकता हूँ? इसके लिए हमको एक पर्टिकुलर ब्रांड पिकअप करना जरूरी है। यहाँ से आपकी ब्रांड पिक्चर में आ गई। तो एवरीबडी शुड पिकअप वन ब्रांड एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस। कोई भी हाइपोथेटिकल हो, जो भी हो, मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था। आपको एक ब्रांड पिकअप करना है, भले ही वो ब्रांड
हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब क्या, इमेजिनरी ब्रांड है, पिकअप इट, उसके लिए आप ऑडियंस ढूंढोगे। या आपको कोई ब्रांड पता है जिसका आप मार्केटिंग करना चाहते हो, उसका आप टारगेट ऑडियंस ढूंढोगे एज अ मार्केटर। भले उसका टारगेट ऑडियंस ऑलरेडी है, बट आपके एंगल से, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, वो आप ढूंढोगे। तो आप सबके पास एक मॉडल ऑफ बिजनेस, मॉडल ऑफ ब्रांड होना चाहिए। गॉट इट। उसके लिए सबसे पहला हमारा टास्क है कि मेरी ब्रांड की टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है। ओके, क्लियर। अगर आपके पास ब्रांड है, देन हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अब अपने ब्रांड की ऑडियंस कैसे ढूंढ सकते हो। माइक देखना किसका तो ओपन है। नाउ टू फाइंड आउट द ऑडियंस फॉर अ ब्रांड, हमारे ब्रांड के ऑडियंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 5 ऑडियंस के फिल्टर है। फिल्टर कैसे काम करता है। आपने ई कॉमर्स वेबसाइट यूज की है, अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट सर्च किया तो पूरे प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर अगर आपने उस प्रोडक्ट का साइज डाला, मेरे को जो पर्टिकुलर साइज चाहिए, बाकी का फिल्टर हो जाता है, उस साइज का ही प्रोडक्ट मेरे सामने होता है। शूज, अगर मैंने शूज का साइज डाला तो वही शूज मेरे सामने आता है। फिर मैंने ब्रांड डाला, उसी ब्रांड के उसी साइज के शूज आएंगे। फिर मैंने कलर डाला, कलर, ब्रांड, साइज, वही प्रोडक्ट्स मेरे सामने है। देन आई कैन रियली चूज विच प्रोडक्ट आई लाइक। यस, ये फिल्टर्स आपने ट्राई किए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सिमिलर वे हम ये ऑडियंस के रिलेटेड फिल्टर यूज करने वाले हैं कि होल वर्ल्ड इज देयर, बट आई डोंट वांट टू शो एडवर्टाइजमेंट टू द होल वर्ल्ड बिकॉज एवरीबडी इज नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बाय, नॉट गोइंग टू टेक सर्विसेज फ्रॉम माय बिजनेसेस। there are some people who are really related to my services, related to my product. Which are those? To find out those audience, I have to filter them with these 5 filter. उन ऑडियंस को फिल्टर करने के लिए मेरे पास ये 5 टाइप ऑफ फिल्टर है। अंडरस्टैंड करते हैं 5 टाइप के फिल्टर क्या क्या है। फर्स्ट इज अ डेमोग्राफिक्स फिल्टर। डेमोग्राफिक्स फिल्टर इज अगेन वाइड फिल्टर, बहुत बड़ा फिल्टर है। उसके अंदर ब्रांड 2 चीजें देखता है कि जिस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहा है उस ऑडियंस का जेंडर क्या है, उस ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है। So whenever brand takes a gender and the particular age group to target, that is called as a demographics audience. जैसे हमने एग्जांपल दिया, I have a male perfume as a product, तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस है मेल, जेंडर मेल। नेक्स्ट, एज ग्रुप ऑफ 18 to 30, 18 to 25, दैट सेट ऑफ ऑडियंस इज कॉल्ड एज अ डेमोग्राफिक्स ऑडियंस। जब ब्रांड टारगेट करने के लिए एज एंड जेंडर को यूज करता है ऑडियंस की, उस ऑडियंस को डेमोग्राफिक्स ऑडियंस बोलते हैं। तो यू नीड टू थिंक बैक कि मेरा अगर कोई प्रोडक्ट है तो मेरे प्रोडक्ट का डेमोग्राफिक्स ऑडियंस क्या हो सकता है। ऐसे कौन से जेंडर है जो मेरे लिए प्राइम ऑडियंस बन सकता है, या कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो मेरे लिए प्राइम ऑडियंस बन सकता है। दैट ऑडियंस इज अ डेमोग्राफिक्स ऑडियंस ऑफ योर ब्रांड। नेक्स्ट, जियो टारगेटिंग। जियो टारगेटिंग वेयर ब्रांड टारगेट विद पीपल विद पर्टिकुलर लोकेशन। अगर मैं एक ब्रांड हूँ और ऐसे लोकेशन में रहने वाले लोग मेरे बहुत काम के हैं, तो वो जियो टारगेटिंग हो गया। एग्जाम्पल, आई एम ए शॉप इन पुणे। मैं एक शॉप हूँ पुणे के अंदर, तो मुझे पुणे के ऑडियंस को टारगेट करना बहुत जरूरी है बिकॉज दे विल कम डाउन टू माई स्टोर एंड दे विल परचेस प्रोडक्ट फ्रॉम माई स्टोर। सो आई नीड टू टारगेट प्राइमली पुणे पीपल। मुझे पुणे के लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। प्लस आई एम अ मेल परफ्यूम स्टोर इन पुणे, देन फीमेल, सॉरी, मेल फ्रॉम द पुणे एंड विद एज ग्रुप ऑफ 18 to 30, 18 to 25 फ्रॉम द पुणे। ये मेरे लिए प्राइम ऑडियंस बन गया कि पुणे के रहने वाले लोग, यस, बट मेल होने चाहिए, 18 to 30 होने चाहिए। दिस सेट ऑफ डेमोग्राफिक्स प्लस जियो टारगेटिंग। तो जब भी ब्रांड कोई लोकेशन का यूज करते हैं ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, उसको जियोग्राफिकल ऑडियंस बोला जाता है या जियो टारगेटिंग ऑडियंस बोला जाता है। तो आप सोचिए कि मेरे ब्रांड का अगर मैं मार्केट करने जा रहा हूँ तो ऐसा कौन सा प्राइम लोकेशन हो सकता है कि वहां के ऑडियंस मेरी ब्रांड को, या वहां पे रहने वाले लोग मेरी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, मेरी ब्रांड की सर्विसेज ले सकते हैं। दैट इज लोकेशन, दैट लोकेशन इज अ जियो टारगेटिंग फॉर यू। Next, behavioral audience. Behavioral audience where brand target with the people of something interest or people of something as a lifestyle. Example, जिसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा है, जिसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है उसको ट्रैवलिंग पैकेजेस के मैं ऐड दिखा सकता हूँ। इफ माय बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग पैकेजेस, जिसको ट्रैवलिंग पसंद है उसको मैं मेरा कंटेंट दिखा सकता हूँ, उसको मैं मेरी एड दिखा सकता हूँ। नाउ क्वेश्चन इज हियर, हाउ मार्केटर कैन अंडरस्टैंड
कि क्या लोगों का इंटरेस्ट है, कौन सी लोगों का ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, कौन सी लोगों का मेन एक्सेसरीज में इंटरेस्ट है कि मैं उसको मेन परफ्यूम के ऐड दिखाऊं, या कौन सी लोगों को फैशन में इंटरेस्ट है कि मैं मेरी क्लोथिंग के एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं, या कौन से लोगों का लाइफस्टाइल है फैशन रिलेटेड चीजें लाइक करना, उसको मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं अगर मैं शॉपिंग फैशन ब्रांड हूँ। तो मार्केटर को कैसे पता चल सकता है कि लोगों को ये पसंद है, लोगों का ये इंटरेस्ट है? क्या लगता है आपको, हाउ मार्केटर कैन रियली अंडरस्टैंड? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमको लोगों के इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल ढूंढने में हेल्प करेगा? व्हाट यू थिंक? अगर किसी ने गूगल पे कुछ सर्च किया तो वो डेटा भी हम ले सकते हैं। कहाँ से? लाइक गूगल एनालिटिक्स से। नो, गूगल एनालिटिक्स हमको ये डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। गूगल एनालिटिक्स तुम्हारे वेबसाइट पे आने वाले लोगों का आपको डेटा प्रोवाइड करता है, कितने लोग आए, उससे ज्यादा नहीं। तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि लोगों का बिहेवियर क्या हो सकता है? आप सोचो, आप दो दो चार ऐसे डिजिटल चैनल यूज कर सकते हो या यूज करते हो, ऐसा कौन सा चैनल है जिसको आपका बिहेवियर पता है? सोशल मीडिया। गुड, इंस्टाग्राम, फेसबुक। एग्जैक्टली। So social media is a platform where marketer can really understand what is the behavior of audience. Why? Because of the content. What type of content you like, what type of action you do, everything that stores before या stores after what you log in करते हो, उसके बाद आपका ये कंटेंट डेटा पॉइंट में स्टोर होता है, एंड दैट डेटा पॉइंट मार्केटर कैन यूज टू टारगेट। इसको बोलते हैं बिहेवियरल ऑडियंस। सो वेयर यू आर टारगेटिंग विद द पीपल हैव सम इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल हु लाइक टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे लोगों को मैं ऐड दिखाऊंगा ना। पीपल हु लाइक डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, मैं उसको ऐड दिखाऊंगा। व्हाई? बिकॉज दे आर द प्राइम पीपल फॉर PIDM, ये मेरे ब्रांड के लिए काफी प्राइम ऑडियंस बन सकता है। वैसे ही आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं दैट आई कैन रियली गो एंड टारगेट। ऐसे इंटरेस्ट कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ, या ऐसे मेरे कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं मेरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो लोगों को पसंद आ सकते हैं? एग्जाम्पल, माई प्रोडक्ट इज रनिंग शूज, दोज पीपल हु लाइक टू रन, दोज पीपल हु इंटरेस्ट इन फिटनेस, मैं मेरी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता हूँ बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज मैचेस विद माई प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड द बिहेवियरल ऑडियंस। इस टारगेट करने के लिए, इस ऑडियंस को हमको टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है। एज ए मार्केटर, सोशल मीडिया हमारा सबसे प्राइम चैनल है बिहेवियरल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। तो यू नीड टू थिंक बैक और यू नीड टू पिकअप ऐसे कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं लोगों को, पीपल इंटरेस्टेड इन XYZ दैट कैन बी माई प्रोडक्ट्स इंटरेस्ट, वो आपको लिखना है। दैट विल बी योर बिहेवियरल इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। फोर्थ इज एफिनिटी। एफिनिटी इज हु दे आर, दैट इज कॉल्ड द बेस ऑफ ऑडियंस, हु दे आर। इसको एग्जाम्पल में बताता हूँ। अ, सबको ये मी एंड मॉम ब्रांड पता है, या मी एंड मॉम किड्स रिलेटेड ब्रांड है? यस यस। Okay? अब इसके कंज्यूमर्स या इसके प्रोडक्ट्स बने हैं किड्स के लिए, राइट? बट इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? मदर्स। पेरेंट्स। एक्चुअली पेरेंट्स। पेरेंट्स। पेरेंट्स ऑफ व्हाट? पेरेंट्स ऑफ 15 years kid या पेरेंट्स ऑफ 0 to 5 year kid? 0 to 5। 0 to 5 years। That is their target audience. Who they are? They are parents of 0 to 5 year kid. That is called as a affinity audience. इसको affinity audience बोला जाता है। affinity audience टारगेट करने के लिए भी हमारे पास दो प्राइम चैनल है, एक तुम्हारा मेटा, दूसरा तुम्हारा लिंक्डइन। लिंक्डइन में affinity ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल, B2B में एक्सप्लेन करता हूँ। B2B के रिलेटेड अगर मुझे मार्केटर को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, बिकॉज मेरे पास मार्केटिंग का MBA है, और जो लोग मार्केटिंग में 1-2 साल काम कर रहे हैं, जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में, उसको मुझे टारगेट करना है बिकॉज मेरे पास मार्केटिंग का एडवांस MBA कोर्स है 1-2 साल के एक्सपीरियंस लोगों के लिए। तो कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे टारगेट करने के लिए हेल्प करेगा? कौन से प्लेटफॉर्म से मुझे पता चल सकता है कि लिंक्डइन। somebody is doing marketing? Yes, which one? लिंक्डइन। LinkedIn, right. Affinity, who they are? They are marketers of 1-2 years experience.
सो एफिनिटी के अंदर हु दे आर का टैग लगता है कि जब मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ बिकॉज दे आर पेरेंट्स, they are marketers, they are students, they are a recent employee of X business, recent employee of Y company, business person, business owner, lot of criteria will come down. So you need to step back and understand who they are. आपके बिजनेस का ऑडियंस है कौन? दे आर द स्टूडेंट्स, दे आर सम पर्टिकुलर कैटेगरी, दे आर व्हाट, हु दे आर इज एफिनिटी ऑडियंस. ब्रांड टारगेट करने के लिए टारगेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, perfume brand again, perfume brand is targeting people in a student area because affordable perfumes create किए हैं, उनका नीड गैदर किया है. या परफ्यूम ब्रांड इज टारगेटिंग फ्रिक्वेंट ट्रैवलर बिकॉज छोटा सा पैकेट परफ्यूम क्रिएट किया है जो ट्रैवलिंग के लोगों को हेल्प कर सकता है इजी कैरी करने के लिए. तो ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका एफिनिटी ट्रैवलर्स है, उनका एफिनिटी स्टूडेंट है. दैट इज कॉल्ड एज एफिनिटी ऑडियंस. तो ये मार्केटर या ब्रांड हु दे आर की कॉन्सेप्ट को समझ के या हु दे आर की ब्रैकेट को समझ के टारगेट करता है. दैट इज कॉल्ड एज एफिनिटी टारगेट. एंड लास्ट इज इन. सर, जो बिहेवियर है एंड एफिनिटी है, तो फिर ये दोनों एक नहीं हो सकते क्या? नो, बिकॉज जैसे लाइफस्टाइल चेंज होगी वैसे एफिनिटी भी. नो, ऑब्वियसली नॉट. हाउ यू आर मिक्सिंग बोथ? एफिनिटी हु दे आर, राइट? एग्जाम्पल, पेरेंट्स. पेरेंट्स इज एफिनिटी. फिर मुझे नहीं फर्क पड़ता उस पेरेंट का इंटरेस्ट क्या है. दे आर अ पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दैट आई एम टारगेटिंग देम. ओके. बिहेवियर इज समथिंग एल्स दे हैव इंटरेस्ट इन, राइट? पेरेंट है बट वो एक मेल है, उसका एज ग्रुप 18 to 30 के बीच में आ रहा है, तो मे बी परफ्यूम ब्रांड इज टारगेटिंग बिकॉज ऑफ दैट एज ग्रुप एंड दैट पर्टिकुलर जेंडर. तो दैट इज द डेमोग्राफिक्स. That particular same person has an interest in some particular traveling, तो traveling का business को उसका advertisement दिखाया जा रहा है. या that person has an interest in shopping, तो उसको shopping के related advertisement दिखाया जा रहा है, right? मीन्स जो हम सर्च करते हैं हमारा जिसमें इंटरेस्ट है वही हमें शो होता है ना. That job is not related to interest or not related to anything. Job is something else. Okay. So मैं जब मार्केटिंग कर रहा हूँ तो उसका कौन सा एंगल कैप्चर कर रहा हूँ ये मेरे लिए जरूरी है. इंटरेस्ट कैप्चर कर रहा हूँ या एफिनिटी कैप्चर कर रहा हूँ, डेमोग्राफिक्स कैप्चर कर रहा हूँ, टारगेटिंग जियो टारगेटिंग कैप्चर कर रहा हूँ. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज माई ऑडियंस. वो कुछ भी हो, मैं उसको क्यों एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ? बिकॉज उसका इंटरेस्ट मेरे प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा है, उसका एफिनिटी मेरे प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा है, तो उसका जियो टारगेटिंग मेरे प्रोडक्ट के साथ, मेरे बिजनेस के साथ मैच हो रहा है, या डेमोग्राफिक्स मेरे प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा है. Because of that reason, I'm showing advertisement. That is called as a target audience. Next, last target audience is a in market. In market is what people they are actively looking and searching for. मेरा बिजनेस वो कहीं पे सर्च करके देख रहे हैं, या मेरा प्रोडक्ट वो कहीं पे सर्च कर रहे हैं. कहाँ पे सर्च कर रहे होंगे? अगर लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सर्च कर सकते इंस्टा इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक गूगल. पे, गूगल. फेसबुक पेज पे कुछ से हैं? फेसबुक. No one is searching on a Google, sorry, Instagram and Facebook for a product. They are searching more on a Google side. Got it? If they know about your brand, they're searching your brand's name on Instagram or Facebook. If people are looking for some services, products, they are mostly using a Google. Somebody is using a Google to search my product, search my business. तो उसको मैं कैसे एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता हूँ, उस वहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? दैट इज कॉल्ड इन मार्केट ऑडियंस. इन मार्केट ऑडियंस के लिए हमारे पास गूगल एड्स है जहाँ पे मोस्टली आई एम कीपिंग कीवर्ड्स एज अ टारगेट, कि लोग मेरे ब्रांड का कीवर्ड सर्च कर रहे हैं. एग्जाम्पल, पीआईडीएम का कीवर्ड क्या हो सकता है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. समबडी सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसको मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा. समबडी सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, उसको मैं मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता हूँ. सो व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर माय ब्रांड? ऐसा क्या सर्च करने के बाद मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज इन मार्केट ऑडियंस. कि ये मार्केट या ये पीपल दे आर सर्चिंग फॉर दीज पर्टिकुलर 10 कीवर्ड्स. ये 10 चीजें सर्च कर रहे हैं तो मैं मेरे एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा. फिर उसका एज कुछ भी हो, उसका बिहेवियर कुछ भी हो, या उसका जियोग्राफी कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. समबडी सर्चिंग दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, आई नीड टू शो एडवर्टाइजमेंट देयर बिकॉज दैट इज वेरी रिलेवेंट टू मी. समबडी सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मुझे नहीं पता कि वो मेल फीमेल है, बट समबडी सर्चिंग दैट,
ये मेरा ऑडियंस बन सकता है, इसीलिए मैं उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा। दीज आर द 5 फिल्टर्स ऑफ योर ऑडियंस। ये 5 फिल्टर है मेरे ऑडियंस के। ये 5 फिल्टर मैं एक साथ भी काम करवा सकता हूँ, या कोई एक पर्टिकुलर फिल्टर मेरे ब्रांड के लिए काम कर सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ऑडियंस फॉर योर ब्रांड, टारगेट ऑडियंस। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मेरे पास कोई ब्रांड है तो उसको मैं कैसे राइट डाउन कर लूँ? चलो, वी विल ट्राई टू राइट डाउन। विजिबल है एक्सेल? यस यस सर। Yes, sir. चलो, लेट्स पिक अप वन ब्रांड, एक फेमस ब्रांड पिकअप करते हैं दैट पीपल नो अबाउट। ओके, एप्पल। ओके, एंड प्रोडक्ट इज अ आईफोन 16, राइट? एंड उसके कंपैरिजन में और एक डालता ताकि यू विल अंडरस्टैंड मोर। सैमसंग A55 समथिंग लाइक दैट। ये फोन है 30,000 का। ये फोन है, आई डोंट नो उसका अभी क्या प्राइस चल रहा है, मैं 17,000 का रैंडम डाल रहा हूँ। ओके, सो नाउ आई हैव अ 2 फोन्स टू मार्केट। 2 फोन्स है, बट दोनों फोन के लिए मेरा मार्केट और टारगेट ऑडियंस किस तरह से चेंज होता है देखते हैं। चलो, आईफोन 16 के लिए क्या ऐसा एज ग्रुप और जेंडर ग्रुप हो सकता है जिसको मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए? What do you think? 25 above. 18 to 25. 18 to 30. Which one? 18 to 30, 18 to 25 क्या है? 18 to 30. वाई 18 to 30? 18 साल के लोगों के पास है क्या 17,000 रुपए? पेरेंट्स दे देंगे। तो पेरेंट्स को दिखाओ ना एडवर्टाइजमेंट। Right. 25 to 45. विच वन? 25 above sir. 25 टू, यस, एक अच्छा है अभी तो। 45. 45, अब 45 उतना डिसीजन स्ट्रांग नहीं होगा। दीज आर द प्राइम लेंगे 45 के लोगों को मुझे प्रोडक्ट बेचना है, बट मैं उसको अलग मैसेज से बेच सकता हूँ। बट मेरा प्राइम ऑडियंस 25 टू 45 है, बिकॉज ये लोग ज्यादा परचेस करते हैं, इसीलिए मैंने उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाने की सोचा। ठीक है, जेंडर ग्रुप बोथ या कोई Both. 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 टारगेट Both. करने की जरूरत नहीं, फिल्टर है, टारगेट करने की जरूरत नहीं है। तो देयर इज नो स्पेसिफिक जेंडर, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं, दोनों जेंडर को मैं टारगेट कर रहा हूँ। जियो टारगेटिंग, ऐसा कौन सा इंडिया का स्पेसिफिक लेते हैं, ऐसा कौन सा इंडिया का एरिया हो सकता है जहाँ के 25 टू 45 ईयर्स के लोग ज्यादा प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं? मेट्रो सिटीज, Tier 1 cities. राइट, Tier 1 सिटीज, राइट। यहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी ज्यादा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर सिटीज के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं, पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इसको दिखाऊंगा, तो वहां पे थोड़ा मुझे चांसेस है बाय कर ले। क्या ऐसा इंटरेस्ट होगा उनका कि हाँ, ये इंटरेस्ट रखने वाले लोग तो 100% दे आर गोइंग टू बाय अ फोन? Photography and security. फोटोग्राफी, समवन हु लाइक फोटोग्राफी रिलेटेड एप्स, राइट? फोटोग्राफी रिलेटेड एप्स दोनों आ सकते हैं। Somebody who like Security. gaming, games, yes, no, right? Yes, yes. Online Sir, gaming, yes. सर एप्पल एक ब्रांड भी है तो उस बेस Oh, पे right, भी right. लोग Why not? परचेज करते हैं। People who like brands, right? लोगों को ब्रांड शॉपिंग पसंद है, ऐसे लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, राइट? तो कहाँ पे मिलेंगे ऐसे लोग मुझे, जिसको ये ऑडियंस है, जिसको फोटोग्राफी रिलेटेड चीजें देखना पसंद है, फोटोग्राफी रिलेटेड चीजें मे बी लाइक करते हैं, या ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड चीजें देखते हैं? कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है? Instagram. इंस्टाग्राम, YouTube यूट्यूब। also. विच वन? नेक्स्ट, इंस्टाग्राम के बाद कौन सा था? यूट्यूब। यूट्यूब, राइट? YouTube. यूट्यूब आल्सो, वेरी गुड। एफिनिटी, हु दे आर, वो लोग कौन है जो लोग ज्यादा बाय कर सकते हैं? 25 Student, corporates, बिजनेसमैन में वर्कर्स, भी जॉब वर्कर्स होते हैं। Employees. businessmen, Tier 1 सिटी में, हाँ, कुछ भी मत बोलो, Tier 1 सिटी में 25 टू 45 ज्यादा लोग कौन है? आईटी Employees. प्रोफेशनल्स एंड Employees. बिजनेसमैन। Corporate employees. सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ मैं, कॉर्पोरेट पीपल, दे आर कॉर्पोरेट पीपल, इन दोज पीपल डिमांड आर हाई।
सो मैं सभी कॉर्पोरेट लोगों को एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा रहा हूँ। यस, मैं कॉर्पोरेट लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा जिसको फोटोग्राफी में, गेमिंग में, ब्रांड शॉपिंग में इंटरेस्ट है। वो लोग ज्यादा बाय कर सकते हैं मेरी फोन को। जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाऊंगा। इन मार्केट ऐसा क्या वो सर्च कर रहे होंगे, क्या लगता है आपको? बेस्ट कैमरा फोन। वेरी गुड चिन्मय। सिंस फोटोग्राफी उसका इंटरेस्ट है, बेस्ट बेस्ट कैमरा। रिव्यूज भी देखते हैं सर, बेस्ट रिव्यूज। रिव्यू बेस्ट कोई नहीं सर्च करता है। सर बेस्ट प्राइस भी कौन देखते हैं, रिव्यू अबाउ करके सर्च प्राइस, करेगा? बिलो प्राइस भी, अबाउ प्राइस भी देखते हैं सर। 100% सर्च करते हैं, सर्च करेंगे लोग बेस्ट। सेम में रखता हूँ कैमरा फोन अंडर 1 लाख, राइट? कि तो एक का कौन सा फोन है कैमरा का, वो आ सकता है। और क्या हो सकता सर है? डायरेक्ट ब्रांड भी तो वो सर्च कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली डायरेक्ट ब्रांड भी सर्च कर सकते हैं। आईफोन 16 इन XYZ कलर, राइट? कर सकते हैं सर्च कि कोई कलर का आईफोन है। हाँ। बट क्या लगता है जो लोग सीधा आईफोन सर्च कर रहे हैं उसको ऐड दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? सर लेटेस्ट उन्हें मॉडल ऑलरेडी जो पता है है सर। उसकी एड दिखाना जरूरी है। पैसा बचेगा अपना सर। देखो, जो लोग ऑलरेडी आईफोन को सर्च कर रहे हैं, दोज हु नो कि है वो प्रोडक्ट इज देयर, तो आप किस पे पैसे खर्च करोगे? जो लोग बेस्ट कैमरा फोन सर्च करे अंडर 1 लाख रुपीज, उसके लिए पैसा खर्च करोगे, या समवन इज सर्चिंग iPhone 16? आईफोन 16। मेरा आईफोन 16। अबाउ 2 के लिए सर। ज्यादा पैसा कहाँ पे खर्च करोगे एज अ मार्केटर? आपको 2 क्या के लिए लगता है? बेस्ट कैमरा फोन बेस्ट। के लिए। बेस्ट फोन एंड बेस्ट कैमरा फोन अंडर 1 लाख। एग्जैक्टली, बिकॉज दीज पीपल डोंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट येट। वहां तक आपको पहले पहुंचना है। दोज हु आर सर्चिंग आईफोन, उनको हमारे ब्रांड के बारे में पता चल गया, उस पर हमको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी कमिंग, दे आर सर्चिंग द पर्टिकुलर फोन। मेरा फोन का वेबसाइट उसको दिखने ही वाला है। जिसको पता नहीं है वहां तक मैं पहले पहुंचू, राइट? दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केटिंग। इसको मैं हटा देता हूँ, दिस इज नॉट ऑडियंस। सो नाउ आईफोन के लिए मेरा ये ऑडियंस बन गया। इसके लिए मेरे पास क्या होगा क्या नहीं होगा उसको फिर से सोचेंगे बाद में, बट ये मेरा ऑडियंस हो गया। इसको ही बोलते हैं ICP, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। ओके। तो जब भी आप किसी भी ब्रांड को मार्केट करने जाते हो, तब आपको अपने ब्रांड के प्रोडक्ट के हिसाब से ICPs फाइंड आउट करने होते हैं। नाउ यू नो अबाउट आईफोन, तो आपने ये ढूंढ के निकाला। अगर मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम प्रोडक्ट डालते होगा, मैंने कुछ प्रोडक्ट डाला जिसके प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो क्या ये चीजें लिख पाओगे? नहीं। नहीं, राइट? नहीं। तो हमको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर आते हैं। अभी सेम एक प्रोडक्ट, मोबाइल फोन मार्केट करने जा रहा हूँ, बट वो आईफोन सॉरी सैमसंग A55 है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एज ग्रुप क्या रहेगा? व्हाट इज डेमोग्राफिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर? मीटर से लेकर हम लोग एक 18 to 18 55। to 30। ओके, 18 to 18 to 55 or 60 also। ये थोड़ा बड़ा है, राइट? 18 to 50 को मैं दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे कैच है। 18 साल के बंदे को अगर ये सैमसंग A55 मुझे बेचना है, और 50 साल के बंदे को भी मुझे सैमसंग A55 बेचना है, तो क्या दोनों के लिए रिक्वायरमेंट सेम रहेगी? मैसेज सेम रहेगा, अलग रहेगा? अलग अलग हो रहेगा। सकता अलग रहेगा सर। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि मेरा भला ही ऑडियंस बहुत बड़ा है, बट इसके अंदर अलग अलग ग्रुप है। 18 to 25 का एक ग्रुप बन सकता है। मे बी ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स जिसको स्टडी के लिए, या जिसको स्टूडेंट वर्क के लिए, या जिसको कैजुअल यूज के लिए एक फोन चाहिए। उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट मे बी अगेन फोटोग्राफी आ सकता है, बिकॉज सैमसंग का फोन है, फोटो अच्छे खींचता है। स्टोरेज हो सकती है सर उनके लिए। वेरी गुड। उसके या स्टोरेज हो सकता है, या बैटरी। उसका बैटरी। राइट लॉन्ग लाइफ, ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि इसकी वजह से वो ले रहा है, राइट? तो ये मैसेज के साथ में उसका एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास और एक ऐसा ग्रुप है जो 40 अफोर्डेबल हो सकता है कि वो अफोर्ड कर रहे हैं इसलिए। पास हो सकता है। अफोर्डेबिलिटी भी हो सकता है। अफोर्डेबिलिटी ये किसी का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। अफोर्डेबिलिटी क्या होता है
उसको हम बाद में कनेक्ट करते हैं, राइट। 18 to 50 के लोगों को मैं क्या मैसेज से भेज सकता हूँ? व्हाट माइट बी द कर इंटरेस्ट? सकते हैं उनको यूजर फ्रेंडली बता सकते हैं। एक तो यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब क्या? बड़ा ब्रांड भी है और उस पर्टिकुलर यूजर फ्रेंडली टैब के अंडर भी आ रहा है, यूजर फ्रेंडली हो गया। और क्या है? ये ब्रांड एक्सेस है, मतलब इनके जो स्टोर्स होंगे वो आपके कुछ भी फोन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हाँ, वो एक्सेस। इंटरेस्ट है क्या किसी का? इंटरेस्ट क्या हो सकता है? हाँ, इजी फोन चाहिए मुझे। कैप्चर ऑफ फैमिली मेमोरी मेमोरी, अगेन जैसे फोटोग्राफी हो गया। कैमरा से होगा, कैमरा फोटोग्राफी और सेम ऐसे होगा। फोटोग्राफी कहीं हद तक, बट 45 to 50 सोचो। खींचते ना सर, बुड्ढे बुड्ढे भी खींचते अच्छे अच्छे इजी टू फोटो। यूज। इजी टू यूज, लॉन्ग बैटरी लाइफ, राइट। लॉन्ग बैटरी लाइफ, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, राइट, कि लंबा चलेगा। ये फोन 10 साल 5 साल चलेगा आपकी फोन। बिकॉज सर उनकी ऐसी यूनिट लगे। टेंडेंसी रहती है कि वो जल्दी नहीं चेंज करना चाहते, जैसे एग्जैक्टली, जेंजीज फटाफट से चेंज करते। एग्जैक्टली। तो जब आप इस ऑडियंस के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाओगे, तब ये फीचर्स लिखोगे कि फोन इजी टू यूज है। कैसे? फोन के अंदर 15 लैंग्वेजेस है। आप इंडिया के कौन से भी कोने से आओ, सब लैंग्वेजेस अवेलेबल है। प्लस इसकी बैटरी लंबी चलती है, प्लस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का फोन है। तो डरने वरने का टेंशन नहीं, गिरोगे तो ठीक है। बट 18 से 25 साल के लोगों को ऐड दिखा रहे हो तो फोटो लेते हुए ऐड दिखाओगे, उसके अलग अलग कलर हम्म। दिखाओगे, राइट। Got it? So because of यस। that, we segregate the audience. भले ही मेरा ऑडियंस बहुत बड़ा है, but everybody is not going to understand my equal message. मेरा मैसेज सही से वो एक ही नहीं समझेंगे, अलग अलग मैसेजेस मुझे लिखने पड़ेंगे। इसके लिए हर टाइम हम आईसीपीस को अलग अलग लिखते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? यस राइट, वेरी गुड। ना, सर, अगर हमने सपोज अमूल अमूल लिया एज अ ब्रांड, हम्म तो उसके प्रोडक्ट आइसक्रीम लिए, तो फिर डेमोग्राफिक्स उसका 5 years एंड अबव होगा ना, या फिर कैसा रहेगा उसका डेमोग्राफिक्स? हमको ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स जानना है, ओके, राइट। नॉट कंज्यूमर हमेशा। तो अगर ओके। somebody who takes this product between the age group of 5 to 10, तो मैं हम्म। पेरेंट्स को टारगेट करूंगा, those who have a kid of 5 to 10, ओके। राइट। उसको मैं दिखाऊंगा कि अमूल का आइसक्रीम अच्छा है, केमिकल फ्रेंडली है, वो लोग बाय करेंगे, हम्म। राइट, बिकॉज उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स द पर्टिकुलर किड इज केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको उस हिसाब से ऐड जाएगा, तो मेरा टारगेट ऑडियंस सही है। गॉट इट? राइट। और सर उसके अबव फिर मतलब जैसे स्कूल गोइंग पीपल, उसकी ऐड बताना पड़ेगी, लाइक 18 to एंड अबव, सो फिर वो चेंज होगा एडवर्टाइजमेंट, राइट? स्कूल गोइंग पीपल, कम बैक अगेन, फिर से लॉजिक बताइए आपका क्या था? जैसे अगर स्कूल गोइंग पीपल है तो उनके लिए उसका एडवर्टाइज चेंज होगा, लाइक कुछ स्कूल है उसके बाहर आइसक्रीम मिल रहा है, तो लाइक ऐसी एडवर्टाइज होगी। ऑफ कोर्स हो सकती है, वो लोकेशन राइट। मैटर करता है फिर, हम्म। राइट। लोकेशन स्कूल का कोई एक्स रहेगा, उस लोकेशन के 10 किलोमीटर के आजू बाजू के लोग। गॉट यस। इट? यस। यस। दैट इज व्हाट इज द ऑडियंस आईसीपी। तो आपको क्या करना है? सेम एक्सेल आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड, डाउनलोड द एक्सेल। उस पर कुछ काम मत करो, डाउनलोड करो एक्सेल को। फाइल में क्लिक करके यू कैन डाउनलोड द एक्सेल। आप एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउनलोड कर लेना, एंड ट्राई टू राइट डाउन योर ब्रांड्स ऑडियंस। आपको क्या लगता है आपके ब्रांड के हिसाब से ऑडियंस चाहिए मुझे? टेक एनी ब्रांड एज एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल या रियल कोई भी रहेगा, आप उसका एग्जाम्पल क्रिएट करो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट राइट डाउन द ऑडियंस। आप अपना खुद का एक ऑडियंस लिख सकते, कर पाओगे? यस सर। यस। फर्स्ट टास्क है ये आपका। सेकेंड टास्क, मैंने बोला कि आईफोन आपको पता है, सैमसंग आपको पता है, इसीलिए आपने उसका ऑडियंस लिख पाए। मगर आपका ब्रांड, अगर आप पहली बार उसको देख रहे हो, पहली बार उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, या आपने कोई रैंडम ब्रांड पिकअप किया, तो उस ब्रांड को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास और एक एक्सेल है, ब्रांड इन डिटेल नाम का।
On this particular Excel, you are going to understand why you are marketing your brand, why you are doing a particular marketing of your products. Okay, random product लेते हैं यहाँ पे हम। चलो एक कोई नॉन फेमस प्रोडक्ट को लेते हैं। मैं अभी के लिए PIDM का ले रहा हूँ। ओके, टू गिव यू एन एग्जांपल। ओके, PIDM मेरे पास कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का। एज अ ब्रांड आई हैव अ कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नाउ दिस इज नॉट अ वाइडली famous, widely used. This is a very strict to some people with some of other choices. तो मैं इसको मार्केट क्यों करूंगा? फर्स्ट मुझे समझना पड़ेगा कि why people interact with your business। ऐसा क्या पॉइंट है उसके लिए लोग मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आप मुझे बताओ, why people will see PIDM's डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ऐसा क्या पॉइंट है, क्यों लोग मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को देख रहे हैं? फॉर जॉब। वेरी गुड। पीपल हु आर looking for an job. Which job? Maybe. Online. Which one? ऑनलाइन। Job in Part-time job. job in Open ना business job both. in marketing सबसे पहले। Somebody is looking राइट। at marketing, ये मेरे लिए प्राइम ऑडियंस है। पार्ट टाइम जॉब तो बहुत टाइप के हैं, बट व्हाई? बिकॉज मार्केटिंग का जॉब है। तो why people interact? Somebody is looking job in marketing, somebody want to learn marketing, ये भी पॉइंट हो सकता है। For their business also. Right, learn marketing for job और मे बी फॉर अ बिजनेस, दोनों के लिए हो सकता है कि somebody is learning a digital marketing और marketing for X reason, Y reason. These are the two main points people interact with my business. मेरा ऑडियंस आउटकम क्या है, मैं सर को क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? गो अहेड। अगर मतलब वाई पीपल इंटरेक्ट विद योर बिजनेस में ये भी आ सकता है कि वो हमको स्ट्रक्चर्ड करिकुलम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आउटकम है, ओके। राइट। कोई स्ट्रक्चर्ड आउटकम नहीं सर्च कर रहा है, उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, दैट इज द मोटिवेशन। वो बिजनेस के साथ बिजनेस क्यों करेगा, उसका ही क्लास का बिजनेस क्या, उसका ही क्लास का कोर्स क्यों करेगा? बिकॉज ब्ला ब्ला रीजंस आर देयर। ओके, वन ऑडियंस आउटकम क्या है? अगर ये लोग मेरे बिजनेस के पेज के ऊपर आते हैं, जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, जिसको बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, जॉब के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो उसके लिए मेरे पास आउटकम क्या है? मेरे पास प्लेसमेंट। हाँ 60 days कोर्स मेरे पास। Certification. हाँ हाँ, Online classes and offline classes ऑनलाइन available. क्लासेस, Offline classes available. राइट, ऑफलाइन प्लेसमेंट। Certification. ब्ला 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 रीजन, ये मेरे पास आउटकम है। नेक्स्ट, मेरा यूएसपी क्या है? यूएसपी सबको पता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ऐसा मेरे पास क्या पॉइंट है जो Placements. मेरी कॉम्पिटिटर से अलग कर रहा है? क्या हो Good सकता है? placements. Good placements. प्लेसमेंट्स हो सकता है, या मेरे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू सर प्रिपरेशन प्लेसमेंट ऑडियंस आउटकम में भी आ सकता है ना? आ सकता है। बट अगर Also आपको लगता है कि certification. प्लेसमेंट, हाँ ना, सर्टिफिकेशन अगेन, पॉइंट जो भी आप रख रहे हो, इज इट यूनिक पॉइंट और इट इज अ सेम फॉर एवरी, लाइक एवरीबडी इज प्रोवाइडिंग? ये आपका आउटकम है ये, या ये आपका यूएसपी है? यूएसपी मेरा क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, वी हैव बोथ ऑनलाइन एंड Offline. ऑफलाइन, जो करना है करो, राइट। ये एक मेरा यूएसपी हो सकता है, वी राइट। हैव बेस्ट फैकल्टी। फैकल्टी अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये मेरा यूएसपी हो सकता है। तो ये मैं मेरे बिजनेस के बारे में समझ रहा हूँ, क्यों? बिकॉज अगर somebody इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग को मैं टारगेट करने जा रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से मेरा कंटेंट लिखूंगा। मेरे कंटेंट के अंदर, मेरे पोस्टर के अंदर, मेरे वीडियो के अंदर वो लैंग्वेज, वो हेडिंग्स, वो मैसेज आना चाहिए। इसीलिए आपको अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। along with that you should know whom to target. Got it? समझ में आएगा? दोनों एक्सेल्स आप अपने ब्रांड के लिए लिख सकते हो। कैन यू ट्राई? यस, सो पिक अप यस। ब्रांड। ओके, बिकॉज हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेटा पे जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए, तो मेटा पे हमारा एक टास्क है टू क्रिएट ए ब्रांड कंपनी पेज। हमको कंपनी पेज क्रिएट करना है।
तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं है तो किसका पेज क्रिएट करोगे, क्या बनाओगे, बना नहीं पाओगे, पीछे रह जाओगे। राइट। मैं बताऊंगा कि आपको ऐड की प्रैक्टिस कर लो। कौन सी ऐड की प्रैक्टिस करोगे, तब आपके पास कुछ मॉडल होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बिजनेस है, इसके लिए ऐड प्रैक्टिस किया। फिर आप उसका ऑडियंस चेक करेंगे, गलत है सही है, ये करेंगे। तो आपके पास सर आप प्रैक्टिकल बिजनेस होना बहुत जरूरी है। गॉट इट। हेलो। बस, गो अहेड। सर आप मेटा के बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्योंकि कल का क्लास मैंने नहीं किया था। बताएंगे लास्ट में। ओके श्योर। सो आपके पास बिजनेस मॉडल या एग्जाम्पल बिजनेस होना चाहिए, जिसके बारे में सबसे पहले टास्क आप ऑडियंस लिखने का करोगे, या ब्रांड एक्सेल लिखना है, पहले ब्रांड एक्सेल लिखो, देन उसके बाद ऑडियंस लिखना है, ऑडियंस लिखो। आपके हिसाब से कौन सा फर्स्ट करना है, कर सकते हो। बिफोर गोइंग टू डू दैट, आपको ये एक पीपीटी पढ़ना है। ओके। इसके अंदर एज आई टोल्ड यू, लैंग्वेज ऑफ मार्केटिंग के बारे में लिखा हुआ है। हर एक जो शब्द यूज होते हैं उसके पीछे क्या क्या पर्टिकुलर थेरी है या क्या उसका डेफिनेशन है, वो लिखा गया है। ओके। तो ये आपको पढ़ने के लिए है। यू हैव टू गो एंड रीड ऑल दिस डॉक्यूमेंट। इन द लास्ट यू हैव दिस पर्टिकुलर ब्लॉग्स टू रीड। स्टार्टिंग में ब्लॉग्स है कुछ रीड करने के लिए, जैसे फंडामेंटल्स के लिए ब्लॉग है, एक्रोनम्स जो सोशल मीडिया में छोटे छोटे वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में है। तो ये एक काइंड ऑफ अ ग्राउंड वर्क है आपके लिए। ये होने के बाद आप अपना एक्सेल फिलअप करने का काम स्टार्ट करोगे। गॉट इट? क्लियर है ओके। यस सर। सबको टास्क? Yes. Any यस doubt on the task? Any doubt on the fundamental PPT? इसके ऊपर किसी को कोई डाउट है? यस नो? सब लोग कर पाओगे ट्राई? सर एक ही ब्रांड का एग्जांपल लेकर करना है? दो तीन ब्रांड का कर लो, व्हाई नॉट, आई एम हैप्पी विद दैट। ओके ओके। मिनिमम एक ब्रांड का चाहिए मुझे। आप दो तीन करोगे तो आई विल बी हैप्पी, व्हाई नॉट। और नेक्स्ट दिन आते ही, बिफोर गोइंग टू कम फॉर द नेक्स्ट डे, आप ये जो एक्सेल्स बनाते हो वो ग्रुप पे डाल के रखिए, सो आई कैन गो एंड चेक। मैं उसको एक बार देख लूँ। ओके। एंड इन द क्लास यू नीड टू शेयर अ स्क्रीन एंड एक्सप्लेन कि आपने ये ऑडियंस क्यों पिकअप किया, क्या लॉजिक रहा। बस सेंड करना नहीं है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। गॉट इट? सर बट सर सर जैसे अगर एक ब्रांड है और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक ब्रांड के एक सपोज ही प्रोडक्ट ले लो। नहीं बट अगर सपोज अगर प्रोडक्ट इज क्लोथिंग, एक ब्रांड की क्लोथिंग है तो उसके एज ग्रुप्स तो बहुत सारे होते हैं एक ही एंड प्रोडक्ट मेल ले एंड। लो ना, इसीलिए मैंने आईफोन, एप्पल बहुत सारे प्रोडक्ट है, आईफोन 16 लिया मैंने। एक ही प्रोडक्ट पिकअप कर लो ना, या एक ही कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट पिकअप कर लो। बट सर जब अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो अभी के उसमें लिए एक तो प्रोडक्ट के लिए कर लो ना, समझ ओके में आ गया तो उसको और प्रोडक्ट के लिए कर लो। ओके। राइट। ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि भले ही ब्रांड बहुत है, जैसे अमूल बहुत बड़ा ब्रांड था बट आइसक्रीम के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को पिकअप करें ना हम। ओके सर। तो एक कोई प्रोडक्ट है पिकअप कर लो, उसके बाद फॉर्मूला समझ में आए, उसी फॉर्मूला को समझ के फिर अदर प्रोडक्ट के लिए कर लो। ओके सर। जी। सर प्रोडक्ट हाइपोथेटिकली होना चाहिए या फिर कोई भी चूज कर सकते हैं? रियल है तो बढ़िया है, हाइपोथेटिकल है तो भी अच्छा है, व्हाई नॉट। बट जो भी प्रोडक्ट चूज करते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सेल लिख पाओगे आप, या रिसर्च तो करना आना चाहिए। राइट। बिकॉज एक्सेल ब्लैंक है, तुम्हारा ब्रांड इन डिटेल का एक्सेल ब्लैंक है, तो फिर ऑडियंस आपने कहीं से पिकअप किया हुआ है, तो वो नहीं चाहिए मुझे। जो भी आप हाइपोथेटिकल बिजनेस पिकअप करोगे या जो भी रियल ब्रांड पिकअप करोगे, यू शुड नो अबाउट दैट ब्रांड। और जो आपको पता है वो आपको लिखना है कि वाई पीपल इंटरेक्ट, आउटकम्स एंड यूएसपी। ओके। ओके सर। गुड। सो दैट इज आवर फर्स्ट टास्क, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस फंडामेंटल्स। ये आप हर एक ब्रांड के लिए करोगे। जब भी कोई ब्रांड मार्केट के लिए एज अ मार्केटर आपको अप्रोच करता है, तो ये सबसे पहले किसी भी ब्रांड को पूछना होता है कि what is your business outcome, why people interact with your business, what are your USP you have. Next, according to your outcome, according to your interaction point, why people interact, and USP, maybe this will be your audience. तो ये सबसे पहला टास्क होता है कि ये फिक्स करो। बिकॉज ऑडियंस फिक्स हो गया, फिर आप अपने मार्केटिंग के एंगल क्रिएट करते हो। क्यों एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हो? बिकॉज somebody हैज इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग अ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग का हेडिंग में डाल दूंगा।
हैज अ इंटरेस्ट ऑफ जॉब ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग, जॉब ओरिएंटेड हेडलाइन आएगा, दिस इज व्हाट इज अ मार्केटिंग कंटेंट। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर इज अ मार्केटिंग कंटेंट। तो इसके लिए हमको ये ब्रांड एक्सेल लिखना बहुत जरूरी है। जितना डिटेल में ब्रांड एक्सेल लिखोगे, हमने तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखा था, आप डिटेल में लिख सकते हो, ओके, उतना आपके लिए अच्छा है। गॉट इट? कर पाओगे? यस सर, यस। यस, ठीक है। बताइए क्या मेटा के क्वेश्चंस थे, व्हाट यू वांट टू नो अबाउट मेटा? सर सर लाइक मतलब एक्चुअली मेटा क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता है ऐसे। मेटा क्या है? मेटा एक कंपनी है, राइट? मेटा कंपनी किसकी है पता है? किसी को पता है मेटा किसने फाउंड किया था कंपनी? मार्क मार्क जकरबर्ग। अकेला बंदा है, उसके पास टीम था? टीम था। अच्छा। So Mark Zuckerberg has a found a particular product called Facebook with a team। Facebook नाम का प्रोडक्ट था जो उन्होंने कैलिफोर्निया में लॉन्च किया था। फेसबुक का काम था लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। दैट वाज अ ईरा व्हेन द इंटरनेट हैज बॉर्न एंड इंटरनेट हैज स्टार्टेड यूजिंग पीपल। लोगों ने स्टार्ट किया था उसको यूज करना। बट हाउ टू यूज इंटरनेट, दैट इज वन मेथड फेसबुक वेयर वी कैन कनेक्ट विद द पीपल। स्लोली स्लोली वो लोगों ने यूज किया, अडॉप्ट किया, ग्रोथ होता रहा, एंड देन दिस कंपनी कॉल्ड मेटा गॉट बॉर्न। एंड इनसाइड द मेटा देर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया एज अ चैनल्स। काफी सारे सोशल मीडिया है। फेसबुक इज अ प्राइम चैनल। Then they have acquired very famous WhatsApp. Then they have acquired second famous Instagram. Then they have acquired or created a famous platform Threads, Messengers। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है इन द कॉल मेटा ग्रुप। मेटा ग्रुप का काम क्या है? लोगों को उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करवाना। क्यों? बिकॉज जितने ज्यादा लोग फेसबुक को यूज करेंगे, जितना टाइम फेसबुक पे यूज करेंगे, उतना वो लोगों का डेटा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट पीपल रियली लाइक, व्हाट पीपल रियली डोंट लाइक, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा सेट दे क्रिएट द ऑडियंस सेट्स फॉर द मार्केटर। ये ऑडियंस सेट बनाता है मेटा, एंड इस ऑडियंस का यूज करके मार्केटर मेटा पे एड रन कर सकते हैं। एंड जब मार्केटर मेटा पे एड रन करेगा, मेटा अपना रेवेन्यू कमा लेता है। इसको मेटा एज अ कंपनी का रेवेन्यू सिस्टम है ये। गॉट इट? दिस इज व्हाट अ मेटा। तो मेटा के अंदर हम भी ये दो प्लेटफॉर्म बहुत डिटेल सीखेंगे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है, आगे जाके वो समझेगा, कुछ अलग है नहीं उसके अंदर, बस उसका लुक एंड फील अलग है। फेसबुक कौन यूज करते ज्यादा? कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा यूज करते हैं फेसबुक? 18 to 35, 40। राइट, Above 18 टू, 30. नॉट अबाउट 30। अबाउट 35। करते हैं लोग 25 से 45 50 तक के लोग फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं। 18 टू, 75 ऑल्सो। बहुत सारे, राइट, वो आगे फिर वो हो सकता है, राइट। बाय करने वाले लोग तो उतने ही है, 75 के लोगों को ऐड दिखाने का फायदा नहीं है। फिर 18 to 27 28 मे बी 30 35 तक इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए प्राइम जो भी कोई बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस का प्राइम ऑडियंस ये लोग होते हैं, 18 to 45। कोई भी बिजनेस हो, भले ही उसके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, बट एज ग्रुप इज अ कॉमन फैक्टर कि हाँ ये एज ग्रुप आपको हर एक बिजनेस के ऑडियंस में देखने को मिलता ही मिलता है, ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस के ऑडियंस में। इसीलिए ये दो प्लेटफॉर्म्स सीखना बहुत जरूरी है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे कैसे मार्केटिंग सीख सकते हैं। इसके लिए ही मेटा एड नाम का प्लेटफॉर्म देखने जा रहे हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द मेटा अभी के लिए, बाद में डिटेल देखेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। यस, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? फर्स्ट क्लास इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग्स का आपको एक एक्सेल बना रहा हूँ, ओके। एक्सेल्स में आपको पूरे दिन के एक्सेल्स जैसे जैसे ही होता जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज का एक्सेल है, सॉरी आज का रिकॉर्डिंग है, आई अपडेट इन एक्सेल। तो वहां पे पूरा आप जाके देख सकते हो। आई शेयर ऑल डॉक्यूमेंट्स इन द ग्रुप टुडे। ओके, सब लोग हो ना ग्रुप के अंदर? ऐसा कोई नहीं ना जो ग्रुप के अंदर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है? एवरीबडी इज इन ग्रुप, राइट? ओके, फाइन, सब लोग ग्रुप में है तो आई शेयर। सर आप जीमेल पे सेंड कर दीजिएगा।
नहीं, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, सबके जीमेल पे नहीं, आपको जीमेल से एक्सेस कर सकते हो। एक सबका एक लिंक है, कुछ डेटा डाउनलोडेबल नहीं, सबके लिंक्स है, वहां से आप सेव करके रखना आपके पास। ओके, गुड, डन देन गाइस, वील मीट बैक टुमारो। ओके, प्रैक्टिस, कुछ डाउट आया ग्रुप पे डाल दो, कनेक्ट कर लो। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes. थैंक यू।